Hello, good afternoon to all. I am Suman Bharadwaj, economics teacher. Today we will study the next part of aggregate demand and related concept. We have covered consumption function and saving function. Today we will study about the equation of consumption function and equation of saving function. Let's start with the equation of consumption function. We do while studying the consumption function, equation of consumption function and saving function, the revision of consumption function and saving function along we do with this. Now equation of consumption function, equation of consumption function, here it is given, so we will study. In consumption function, what we have to remember, consumption function, with the help of consumption function can be put into two parts. Okay, your consumption function is presented in two parts. Consumption function presented in two parts. First we'll study about the first part. When the income is zero, when the income is zero means your autonomous consumption. जब हम जीरो लेवल की बात करते हैं तो जीरो लेवल का मतलब क्या है, दैट इज़ योर ऑटोनमस कंजप्शन, दैट इज़ योर ऑटोनमस सेविंग. जब हम कंजप्शन की स्टडी करेंगे तो ऑटोनमस कंजप्शन हो जाएगा. जब हम सेविंग की स्टडी करेंगे तो एट दैट टाइम इट विल बी ऑटोनमस कंजप्शन. ठीक है. ऑटोनमस कंजप्शन मीन्स जीरो लेवल इनकम. ऑटोनमस consumption means zero level consumption, your zero level consumption, your zero level consumption. When the income y is zero, there is some minimum consumption known as the autonomous consumption. Autonomous consumption is always denoted by C bar. Okay, or this is your autonomous consumption, right? It is denoted by C bar, which is always positive. Autonomous consumption positive क्यों शो करते हैं? पॉजिटिव शो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि चिल्ड्रंस हैं. ठीक है. चिल्ड्रंस आर गेटिंग ऑल फैसिलिटीज़ बट दे आर नॉट अर्निंग एनीथिंग. ओके, सो इट इज़ कंसीडर्ड एज बिना कमाई भी हम कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है. खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं. ठीक है. जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो रही है पेरेंट्स के थ्रू या जो भी आपके गार्जियंस हैं उनके थ्रू. नाउ दिस इज द ऑटोनमस consumption is represented by your C bar, right? Remember. Now second point is your when income increases consumption also increases. ठीक है. एज एंड वैन इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजप्शन भी आपका इंक्रीज होगा. ठीक है. इनकम इंक्रीज हुई तो खर्चे भी बढ़ेंगे हाउस होल्ड के. ठीक है. खर्चे आपका एक्सपेंडिचर इज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, हाउ मच इट इज इंक्रीजिंग. But the rate of increase in the consumption is less than rate of increase in income. हम क्या देखते हैं? रेट ऑफ कंजप्शन इस हम ये नहीं कि इनकम हमारी इंक्रीज हुई तो कंजप्शन भी उसी लेवल में इंक्रीज होगा. नहीं. क्यों नहीं होगा कंजप्शन उसी लेवल में इंक्रीज? क्योंकि दिस इज़ द टेंडेंसी ऑफ नॉर्मल पीपल कि वो सेव करके रखते हैं फ्यूचर के लिए, सेविंग. ओके.
सेविंग में अगर सेविंग भी करनी पड़ती है, क्योंकि एट एनी टाइम इन फ्यूचर वी डोंट हैव टू बैग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास हमारा बचाया हुआ पैसा है तो हम उससे अपनी फ्यूचर नीड्स को मीट आउट कर सकते हैं when there is no source of income. Now MPC means marginal propensity to consume. तो marginal propensity to consume हम कैसे शो करते थे? डेल्टा से। तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y इज द फॉर्मूला ऑफ MPC, right? We are doing the revision also in this part. The portion of consumption is termed as induced consumption. तो हम जो marginal propensity to consumption है उसे हम induced consumption कहेंगे, can be estimated by multiplying MPC. हम क्या करेंगे? MPC का जब हम मल्टीप्लाइड करेंगे इनकम से, सपोज दिस इज BY, ओके, व्हाट इज दिस? BY। तो आपकी इनकम है 100, ओके, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप सुने, इनकम है आपकी 100 और B क्या है? MPC। तो MPC की वैल्यू आपकी समझो 0.7 है, तो हम क्या करेंगे? 0.7 इंटू 100 क्या करेंगे? इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा BY का फिगर कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। अभी हम बात करते हैं ऑटोनमस कंजप्शन की। तो ऑटोनमस कंजप्शन की वैल्यू गिवन दे रखी होगी आपकी न्यूमेरिकल्स में, तो उस समय आप क्या करेंगे? यू विल पुट दैट वैल्यू, ओके। ऑटोनमस कंजप्शन की वैल्यू पुट कर दी आपने, ये MPC की वैल्यू पुट कर दी, और इनकम की वैल्यू दे रखी होगी नेशनल इनकम, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और न्यूमेरिकल पोर्शंस को सॉल्व करेंगे। एटलीस्ट यू शुड डू टू first study 2 examples, then do 2 unsolved or 5 unsolved, so that confidence level will increase. Now this C is your consumption, C bar is the autonomous consumption and B is the MPC. ओके, MPC की वैल्यू दे रखी होगी, अगर वैल्यू नहीं दे रखी होगी तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y करके। Now autonomous consumption expenditure is not influenced by income, where induced consumption expenditure that change with the change in income, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम चेंज होगी वैसे वैसे हमारा कंजप्शन लेवल में भी चेंज आता जाएगा। दिस इज योर इंड्यूस्ड कंजप्शन। एज एंड व्हेन income is increasing, consumption will also increase in the same level. This is your induced consumption and your. Now we will study about the next point. The given equation, this is the equation we are studying, beta. Now see, the equation relates in case of linear consumption function. Consumption दे रखा है MP, ये autonomous consumption C bar, and B क्या है? MPC है मार्जिन, and Y क्या है? नेशनल इनकम। हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। Now C, straight line with the C is equals to the interrupt, but the slope of consumption higher the level of B क्या है आपकी? अगर कंजप्शन आपका ज़्यादा है तो मोर इज़ द स्लोप ऑफ लीनियर इक्वेशन। कंजप्शन ज़्यादा होगा तो लीनियर इक्वेशन की स्लोप मोर रहेगी, ज़्यादा रहेगी।
next point related to this consumption function. The equation of consumption function can also be used to draw consumption curve. हम कहते देखते हैं ये जो इक्वेशन है आपकी कंजप्शन फंक्शन की, इसके बेस पर हम कर्व भी डायग्रामेटिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, अभी हम शो करेंगे आपको इन द नेक्स्ट स्लाइड। द इक्वेशन function can be used to draw consumption curve if autonomous consumption is C bar. C bar autonomous MPC is your B is given, then the consumption expenditure for be calculated for the different levels of the income. फिर different levels का income हम calculate. For example, autonomous consumption 40 करोड़ दे रखा है, B क्या है MPC 40.80 दे रखा है, तो इसकी MPS क्या हो जाएगी आपकी 0.20। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मैनी टाइम्स सेविंग दे रखी होती है, MPS दे रखी होगी, तो वो अगर आपकी ने कैलकुलेट करी तो 1 में से माइनस कर देंगे तो उसका नेक्स्ट फिगर निकल आता है। सपोज सी ये MPS की वैल्यू दे रखी है और MPC की वैल्यू दे रखी है 0.8, तो MPS की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 0.2। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। You will calculate simply by using this formula. Now then consumption expenditure C at income 100 crores. तो this is your national income। ठीक है, अब इस नेशनल इनकम C बार क्या कंजप्ट 40 इधर आ जाएगा, 0.8 इधर आ जाएगा। नेशनल इनकम आपकी कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर 100, तो 100 नेशनल इनकम हम लिख देंगे उसके साथ। ठीक है, तो 40 लिख लिया, ऑटोमनस कंजप्शन 100, इसका इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, फिर इसको ऐड कर देंगे और जो भी निकलेगा आपका वो कंजप्शन निकल आएगा। राइट, नेक्स्ट स्लाइड। We have studied about the consumption function. In short, we will do the revision also because this is the tough portion in this chapter. इक्वेशन ऑफ सेविंग। ओके, सेविंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेव इनकम में से कंजप्शन माइनस कर दिया, एस कैसे इनकम में से कंजप्शन माइनस किया तो हमारी सेविंग निकल आई। अब हम सेविंग फंक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, नाउ सेम थिंग, बस इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, सेविंग हम माइनस में शो करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमने आपको शो बताया था कि सेविंग आपकी माइनस में शो करी जाएगी। माइनस में शो करने का रीज़न क्या है कि जब जीरो लेवल ऑटोनमस सेविंग की बात करते हैं हम, तो क्या करते हैं कि जैसे 200 कमाया 200 पूरा खर्च कर दिया, या 200 कमाया और 250 खर्च किया, तो पुरानी सेविंग से हमने वो लिया है, तो दिस रीज़न माइनस में शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट सेविंग, अब सेविंग का इस इक्वेशन में देखेंगे बेटा, सी बार अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग एट द जीरो लेवल, तो माइनस में शो की है। ठीक है, माइनस में कहेंगे ये सी बार प्लस बी वाई, बी क्या हो गया आपका, बी इज़ योर MPS जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, उसमें 0.8 थी हमारी पहले वाली इक्वेशन में ये MPC, तो सेविंग क्या हो गई 0.2, सेविंग इज 0.2। इस तरीके से 1 में से माइनस कर देंगे। अब सी पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम सेकेंड एंड 1 गेट। अब हम देखेंगे बेटा इसको, सेविंग फंक्शन चल रहा है आपका, तो एस स्टैंड्स फॉर सेविंग, वाई इज़ योर इनकम माइनस सी बार, तो सी बार क्या है ऑटोनमस सेविंग, प्लस बी, बी क्या है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी ऑफ सेविंग। ठीक है, जब कंजप्शन फंक्शन की बात चलेगी तो उसमें बी देखो,
कंजप्शन फंक्शन की बात चल रही है और बी आया है, तो बी क्या डिनोट कर रहा है? मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। जब हम सेविंग फंक्शन की बात कर रहे हैं तो सी क्या, ये बी आपका क्या डिनोट करेगा? बी विल डिनोट द मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी, बी विल डिनोट मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग, राइट। तो माइनस में किया है वाई, फिर हम देखेंगे एस, तो माइनस ऑटोमनस कंजप्शन, वन माइनस बी, तो वन तो वन वैसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस बी क्या है? मार्जिन प्रोस्पेंसिटी टू सेविंग, और वाई आपकी नेशनल इनकम है। पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द आंसर। अभी आप देखेंगे बेटा एस सेविंग, सी अमाउंट ऑफ नेगेटिव सेविंग एट द जीरो लेवल इनकम, amount of negative saving at the zero level of consumption means autonomous saving। 1 minus b is equals to MPS, तो ये 1 माइनस बी हमने किया, ये क्या है? MPS है, जो कि हम पहले करके दिखा चुके हैं। 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 0.2, वाई नेशनल इनकम जो भी दे रखी होगी। Now see the given equation in case of linear saving, तो क्या हो जाएगा? S सेविंग माइनस में शो करते हैं, माइनस ऑटोनमस सेविंग प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट क्लोज y, right, in the state with the c minus c is equals to interrupt 1 minus me to the slave of saving function, जो कि अभी अभी हमने आपको समझाया। द इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ सेविंग कर्व इफ autonomous saving and MPS marginal propensity is 1 minus b is given, then saving expenditure can be calculated for the different levels। तो सेविंग एक्सपेंडिचर आपका डिफरेंट लेवल्स पर कैलकुलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे, नाउ वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर। देखो एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से स्टडी होगा। ऑटोमनस कंजप्शन की वैल्यू 40 करोड़ दे रखी है, 1 माइनस बी क्या है आपका? MPS है ये, ठीक है, सेविंग एक्सपेंडिचर, एंड 100 करोड़ क्या है आपकी? नेशनल इनकम। तो सेविंग का फॉर्मूला देखेंगे सी, तो माइनस में शो किया तो 40 करोड़ आ गया, ये पुट कर दी हमने वैल्यू 40 करोड़, प्लस वाई कितनी है इसमें? 100, तो 100 कर दिया, और ये 0.2 कैसे आई है? ये वाली वैल्यू 0.2 दे रखी है, से MPC की वैल्यू 0.2, 1 माइनस बी, ठीक है। 1 माइनस बी कैसे निकली है? 1 में से जब हमने 0.8 को माइनस कर दिया था तो आपकी 0.2 निकली है, तो इधर 0.2, नेशनल इनकम की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 100, तो 100 जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे इस सेविंग इक्वेशन को, तो आपका माइनस 20 करोड़ में आंसर आया है। माइनस में हमेशा सेविंग का आंसर दिया जाता है, क्योंकि सेविंग को हम माइनस में डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट, कंजप्शन ऑफ सेविंग कर्व्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कर्व्स। देखिए y इज इक्वल्स टू सी प्लस एस, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है आपकी? इसमें कंजप्शन भी कर रहा हाउस होल्ड, कंजप्शन भी किया जा रहा हाउस होल्ड से, और सेविंग भी करी जा रही है। इट मीन्स कंजप्शन एंड सेविंग आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या है? ये आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे मेकअप द इनकम, क्योंकि कंजप्शन और सेविंग को दोनों को मिलाकर इनकम आपकी तैयार होती है। Therefore, if one function is also, then the other can be easily obtained। अगर आपको दो फिगर दे रखे हैं
और तीसरा नहीं दे रखा है, तो आप आसानी से तीसरे फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इनकम दे रखी है, कंजप्शन दे रखी है और सेविंग आपको नहीं दे रखी। इजीली निकल आएगा पुट वैल्यूज कर डालकर। So we can derive saving curve from the consumption curve and the consumption curve from the saving curve. इस तरीके से हम सेविंग कर्व से कंजप्शन पर पहुंच सकते हैं, सेविंग कर्व से कंजप्शन पर पहुंच सकते हैं और कंजप्शन से सेविंग पर पहुंचते हैं। कैसे? अगर एम पी सी की वैल्यू दे रखी है, देखो अगर एम पी सी की वैल्यू दे रखी है तो 1 में से एम पी सी कर देंगे तो क्या निकल आएगा? एम पी एस, राइट। 1 में से, क्योंकि व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड? बिकॉज हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल्स टू 1, राइट। अगर इसकी 0.8 वैल्यू है और इस तो क्या हो जाएगी? तो इसकी 0.2 हो जाएगी। सिंपल, 1 में से 0.8 माइनस किया तो 0.2 निकल आया, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग बेटर। आई एम यूजिंग हिंदी बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड। ओके, समझ में आना चाहिए बच्चों को, ताकि आसानी से थ्योरेटिकल पार्ट्स एंड न्यूमेरिकल पार्ट आसानी से कर सकें बच्चे। नेक्स्ट, नाउ डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व एंड द कंजप्शन। अब हम कैसे डिराइव करेंगे? देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजप्शन कर्व। ठीक है, ठीक है। एज सीन डायग्राम, सी सी इज द कंजप्शन कर्व। तो सी सी का डायग्राम कैसे होता है? ऐसे, ठीक है। दिस इज योर सी सी, राइट। अब जब आपका ये ऐसे है तो ये ऑटोमनस कंजप्शन हो गया, ठीक है, जीरो लेवल, ठीक है, ऐसे समझा। इट मीन्स सेविंग एट द जीरो लेवल इनकम, दिस इज राइट, दिस इज सी बार। ओ एस इज इक्वल टू, यहाँ से लेके ओ एस भी बोल सकते हैं, ओ एस से ये इतना हो गया आपका सी बार। एज अ रिजल्ट द सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑफ द नेगेटिव कर्व, ठीक है। ये कंजप्शन का हमने थोड़ा बताया है आपको। अब हम सेविंग की बात करते हैं, तो सेविंग में क्या हो जाएगा? इस तरीके से, ये हमेशा 45 डिग्री का रहता है, इट्स ऑलवेज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एस नाउ कंजप्शन कर सी सी, जो अभी हमने आपके साथ किया ऐसे, और फिर ये ऐसे इंटरसेक्ट, ये एस है और ये, दिस इज योर एस एस एंड दिस इज योर सी से। अब यहाँ पर जो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। एट पॉइंट ई कंजप्शन इज इनकम and APC is equals to 1 and saving is 0. It means saving curve will intersect y-axis at the R by joining S and R and extending its further, we get the saving curve SS. अब है हमारा डेरिवेशन कंजप्शन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व। अब हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसका कैसे डिराइव करेंगे? सेविंग से हमें कंजप्शन निकालना है, कंजप्शन से हमें सेविंग निकालनी है। तो वो कैसे निकाली जाएगी? कंजप्शन दे रखा हो तो -1 कर दो, सेविंग की दे, अगर 0.7 उसकी है कंजप्शन की, तो 0.3 सेविंग की निकल आई। The second point of consumption curve will be determined
करस्पॉन्डली टू द पॉइंट व्हेन द सेविंग कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अभी मैंने आपको शो किया। ओके, नेक्स्ट देखिए वो सेम थिंग दे रखी है, दिस इज योर सेविंग वाला है, ये कंजप्शन वाला है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, सेविंग हमारी हमेशा, ये तो कंजप्शन का हो गई स्टडी। अब हम सेविंग की करते हैं, सेविंग हमारी नेगेटिव में जाती है, तो यहाँ आपका प्लस है, यहाँ हम नेगेटिव पर पहुँच गए, राइट। This APC is equals to 0 and S is equals to 0. This is consumption function and this is saving function of derivation. Thank you. Shri Radhe, Shri Radhe.